So we're going to make some declarations. हम कुछ घोषणाएं करेंगे साथ में. We're going to make some declarations of favor. तरफदारी की कुछ घोषणाएं. Because I told you, we declare what God has already decreed. मैंने बताया था हम वही घोषणा करते हैं जो परमेश्वर ने पहले से And we're going to do it together. और हम साथ में करेंगे. Okay? So if you can put it on the screen, I'll say 1, 2, 3 and speak with that knowing that you are declaring it under the anointing. ये जानते हुए घोषणा करना कि आप अभिषेक के अधीन इन बातों की घोषणा कर रहे हैं. Amen? Amen. Hallelujah. 1, 2, 3 start. I see myself the way God sees me. I am highly favored of the Lord. I am crowned with glory and honor. I am the righteousness of God in Christ Jesus. मैं खुद को वैसे ही देखता हूँ जैसे परमेश्वर मुझे देखते हैं. प्रभु मेरा पक्ष लेते हैं. मुझे महिमा और आदर का ताज पहनाया गया है. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ. God is my Father and He delights in me. He gave me birth through the truth of His incorruptible word. I will fulfill the destiny that my heavenly Father has for me. I am His favorite and favored one. परमेश्वर मेरा पिता है और वह मुझसे प्रसन्न है. उन्होंने मुझे अपने अविनाशी वचन की सच्चाई के द्वारा जन्म दिया. मैं उस मकसद को पूरा करूंगा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए रखा है. मैं उनका पसंदीदा व्यक्ति हूं जिसका वह पक्ष लेते हैं. The favor of God surrounds the righteous. Therefore it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. परमेश्वर की तरफदारी धर्मी जन के को घेरे रहता है. इसलिए मैं जहां भी जाता हूं और जो कुछ भी करता हूं वह मुझे घेरे रहता है. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा. आमीन. The favor of God is on me and goes before me. My life will never be the same. This is the time of God's favor in my life. परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और मेरे आगे आगे चलता है. मेरा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं होगा. यह मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का समय है. God will keep me in the right place at the right time. I will not miss on what God has planned for me. People will go out of their way to be good to me. I am God's favored. प्रभु मुझे सही समय में सही जगह पर रखेंगे. जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसमें से मैं किसी भी बात में नहीं चूकूंगा. लोग मेरे साथ अच्छा करने के लिए मेरे लिए हद से ज्यादा कर जाएंगे. मैं परमेश्वर का चहीता हूं जिसका वह पक्ष लेता है. The favor of God surrounds the righteous. Therefore it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect God's favor to be fully manifested in my life. परमेश्वर का अनुग्रह धर्मी जन को घेरे रहता है. इसलिए मैं जहां भी जाता हूं और जो कुछ भी करता हूं उसका अनुग्रह मुझे घेरे रहता है. मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में पूरी तरह प्रकट होगा. Never again will I be without the favor of God, because it rests richly upon me. I am part of the faith generation that is experiencing God's favor immeasurably, limitlessly and surpassingly. मैं फिर कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं रहूंगा
क्योंकि वह बहुतायत में मेरे ऊपर ठहराया हुआ है। मैं विश्वास की पीढ़ी का हिस्सा हूँ और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को असीमित रूप में लगातार और बहुतायत में अनुभव करता रहूं। The Lord my God has set me high above all nations of the earth. Blessings are coming upon me and overtaking me because I listen to the voice of the Lord my God. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी की सब देशों से ऊपर ऊंचा किया है। आशीषें मुझ पर आ रही हैं और मुझ पर हावी हो रही हैं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुनता हूँ। The favor of God is on me and goes before me. My life will never be the same. This is the time of God's favor in my life. प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है और मेरे आगे चलता है। मेरा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। आमीन। Now we are going to make some declaration for protection. हम सुरक्षा की कुछ घोषणा करेंगे। I declare that I am of God and have overcome Satan, because the one who is in me is greater than the one who is in the world. Therefore, I fear no evil, for the Lord is with me. His word and spirit, they comfort me. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं परमेश्वर का हूँ और मैं शैतान पर विजय पाली है, क्योंकि जो मुझ में है वह उससे जो संसार में है महान है। इसलिए मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। उसके वचन और आत्मा से मुझे शांति मिलती है। आमीन। The Lord has granted me long life and has preserved me from destruction, because in the name of Jesus I dwell in the secret place of the Most High God and abide under the shadow of the Almighty. Amen. प्रभु ने मुझे लंबी उम्र दी है और मुझे विनाश से बचाया है, क्योंकि यीशु के नाम पर मैं परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहता हूँ और सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे रहता हूँ। आमीन। It is written that the Lord is my refuge and fortress. He delivers me from the enemy. Therefore, I do not fear the terror in the night, nor the destruction that takes place at noonday. I am aware that the Lord has given his angels charge over me. Therefore, my life is redeemed from destruction. No evil comes near me, and neither does any plague come near my home. लिखा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मुझे शत्रु से बचाता है। इसलिए मैं रात के आतंक से या दोपहर के समय होने वाले विनाश से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है, इसलिए मेरा जीवन नष्ट होने से बच गया, क्योंकि विपत्ति मेरे निकट नहीं आती और ना कोई विपत्ति मेरे घर के निकट आती है। आमीन। I have the shield of faith, and I quench every fiery dart that the wicked one brings against me, my spouse, my children, siblings, and parents, both in the physical and spiritual. Amen. मेरे पास विश्वास की ढाल है और मैं उस हर जल तीर को बुझा देता हूँ जो दुष्ट मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, भाई बहनों और माता पिता के खिलाफ शारीरिक या आत्मिक दोनों तरह से लाता है। आमीन। I declare this day
that no weapon fashioned against me succeeds. Instead, they become platforms for reinforcing the help of God. I am living by the word. I keep no confidence in the flesh. I rejoice in God as He provides strength in my weaknesses and protects me with His favor. मैं आज यह घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसके बजाय वे परमेश्वर की सहायता को सुदृढ़ करने के लिए मंच बन जाते हैं और वचन के द्वारा जी रहा हूं। मुझे शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। मैं परमेश्वर में आनंदित हूं क्योंकि वह मेरी कमजोरियों में शक्ति प्रदान करता और अपनी कृपा से मेरी रक्षा करता है। Father God, I thank you for continually encamping angels of protection around my family to protect us from all hurt, harm and danger. हे पिता परमेश्वर, मुझे हर चोट, नुकसान और खतरे से बचाने के लिए मेरे परिवार के चारों ओर सुरक्षा के स्वर्गदूतों को लगातार तैनात करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमीन। I decree that this is a day of victory, power, success, safety and strength, and that no weapon formed against us will prosper. मैं घोषणा करता हूं कि यह विजय, शक्ति, सफलता, सुरक्षा और शक्ति का दिन है और हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। I decree that our children, grandchildren and future seed are righteous and that you contend with those who contend with our children. मैं घोषणा करता हूं कि हमारे बच्चे, पोते पोतियां और भावी वंश धर्मी हैं और आप उन लोगों के साथ संघर्ष करें जो हमारे बच्चों के साथ संघर्ष करते हैं। आमीन। Great is the peace of our children, grandchildren and future seed. I evict every counterfeit person and thought from their hearts and minds. हमारे बच्चों, पोते पोतियों और भावी वंश की शांति महान है। मैं हर नकली व्यक्ति और विचार को उनके दिल और दिमाग से बाहर निकालता हूं। आमीन। I rebuke in Jesus' name every familiar spirit now and in the future from derailing our seed. मैं यीशु के नाम पर हर परिचित आत्मा को अब और भविष्य में हमारे बीज को पटरी से उतारने के लिए डांटता हूं यीशु। आमीन। I decree that every enemy trap against our children backfires on him and all things work together for our good. मैं घोषणा करता हूं कि हमारे बच्चों के खिलाफ दुश्मन का हर जाल उस पर उल्टा असर करेगा और सभी चीजें हमारी भलाई के लिए मिलकर काम करेंगी। आमीन। I command the fire of God to burn every iniquitous pattern of thinking from the souls of my family so that my children and future seed serve the Lord all the days of their lives. मैं परमेश्वर की अग्नि को आदेश देता हूं कि वह मेरे परिवार की आत्माओं से सोच के हर अधर्मी पैटर्न को जला दे ताकि मेरे बच्चे और भावी वंश अपने जीवन के सभी दिनों में प्रभु की सेवा करें। आमीन। I decree my children live to be a good old age, full of strength, health and stamina. They fulfill their purpose and destiny, advancing the kingdom of God. Our entire household is saved now in Jesus' name. मैं आदेश देता हूं कि मेरे बच्चे ताकत, स्वास्थ्य और सहन शक्ति से भरा एक अच्छा बुढ़ापा जिए। वे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हुए अपने उद्देश्य और नियति को पूरा करते हैं। हमारा पूरा घर
अब यीशु के नाम में बचा लिया गया है। आमीन।